ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ। ਮੂਲ ਪਾਠ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਐ, ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਨ ਧਨ ਆਗੈ ਧਰੀਐ। ਪਾਨੀ ਪੱਖਾ ਕਰੂੰ ਤਜ ਅਭਮਾਨ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਣ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਈ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਲੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਰਹਾਉ। ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਣ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਈ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਲੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਰਹਾਉ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰੀ ਦੀ ਮੂਰਤ। ਭੱਟ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ, ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਰ। ਭੰਨ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੋ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰੀ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਣ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਭਾ ਗਈ। ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਗਈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੁਹਾਗਣ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੁਹਾਗਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਦੁਹਾਗਣ। ਦੁਹਾਗਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਹੈ, ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਫੇਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਫਿਰ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੁਹਬ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਾਂ ਮਨ ਲਹੈ ਸੱਚ ਨਾਉ। ਸੱਚਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਪ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਸ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਹੋਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਰੂਪ ਚੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਰੂਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸੁਹਬ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਾਂ ਮਨ ਲਹੈ ਸੱਚ ਨਾਉ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। परमात्मा दे गुण गा गा के वो मालिक की सिफ सलाह करके प्रभु विच
अभेद हो जाती है। अगला दूजा ना ही थां, होर कोई दूसरा उहदे वास्ते परमात्मा तो बगैर होर कोई टिकाणा नहीं हुंदा। इस करके महाराज सच्चे पातशाह जी सानू समझा रहे ने, साज सुहागण वो जीव इस्त्री सुहागण है, भाव चंगी है, भागां वाली है, ਜਿਹੜੀ परमात्मा नूं भा गई, प्यारी लग गई। परमात्मा नूं प्यारा की लगदा है, ਉਹਦਾ परमात्मा दा नाम। ਉਹ परमात्मा ਦੇ ਜਿਹੜੇ गुण ने ना, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ। ਤੇ महाराज सानू समझा रहे ने कि ਜਿਹੜੀ इस तरह की सुहागण है ना, तिस कै संग मिलो मेरी माई, हे मेरी माँ। ऐसी सुहागण जिहड़ी प्रभु नूं परमात्मा नूं प्यारी लगी है, मैं भी उहदी संगत करां, उहदा संग करां। बहुत सारे पावन गुरबाणी अंदर पावन सतगुरु जी ने उपदेश दृढ़ कराए। जिवें बचन आउंदा, संतां की होए दासरी, एह आचारा सिखरी, सगल गुणा गुण ऊतमो, भरता दूर ना पिखरी। ए मन सुंदर अपना, हर नाम मजीठै रंग री, त्याग सियाणप चातरी, तू जान गोपालै संगरी। अपनी चातरी अपनियां चलाकियां, अपनियां चतराइयां, सियाणपां नूं छड़ दे, हे मेरी जिंदे। ओ गोपाल जिहड़ा है वो परमात्मा तेरे अंग संग है। और ये सतगुरु जी ने सानू उपदेश दृढ़ कराया, संतां की होए दासरी। रब दे प्यारे संत जिहड़े ने वो संगत नूं कहा गया, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾ सत संगत विच आण के जीव इस्त्रियां बैठदियां गुरमुखां नूं कहा महाराज कि उन्हां दी दास, उन्हां दी सेवका बण। अज दा जिहड़ा पावन वचन है ना, जदों आरंभ विच आपां जदों इस पावन वचन नूं सरवण करांगे ना, ते महाराज जी ने कहा सेवा जिहड़ी प्रभु परमात्मा अकाल पुरख नूं भावे भाव चंगी लगे, वो सेवा उहदी किस तरह करनी चाहिदी है। एक सिख धर्म दे विच ना सिमरन ते सेवा दो सिक्खी दे थंब ने। सिख दे कोल ये दोवें ही खंभ होने चाहिए ने, सिमरन भी ते सेवा भी। कई बार असी सिमरन करते हैं तो सेवा नहीं करते, सेवा कर लेने तो सिमरन नहीं हुंदा। सेवा भी ते सिमरन भी। भाई साहब जी जिवें हुणे दस रहे सन, विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगह बैसन पाईए। गुरु अर्जन साहिब जी महाराज कह रहे ने, अनक भांत कर सेवा करिए। अनक भांत तो भाव अनेकां तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ सेवा करनी चाहिए है। सेवा किहदी करनी है? सेवा परमात्मा किवें रिझदा है, गुरु किवें प्रसन्न होवे, गुरु नूं किहो जी सेवा चाहिए है। देखो सेवा जिहड़ी है ना कई प्रकार दी है, ते सेवा जिहड़ा करन वाला है ना वो भी इस तरह सेवा करे कि मैं जो कुछ कर रहा ये परमात्मा ते गुरु करा रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं अपने हथों कुछ भी नहीं दे रहा। जे तन दत्ता है तो मालिक जी ये भी तेरा है, मन दत्ता है ये भी तेरा है, धन दत्ता है ये सब कुछ तेरा है, मैं कौन आ सेवा करने वाला। कई बार बंदा सेवा करके ना दूसरे नूं दिखाउंदा है कि मैं सेवा कर रहा। किसी प्रकार की भी सेवा करे, तो मैं बेनती करता हुन्ना कि जेड़े गुरु अस्थानां ते सेवा नहीं हो रही उत्थे जाके सानू सेवा करनी चाहिए है। जिस जगह ते आके बेअंत संगतां सेवा करदियां मुबारक ने, तो उस जगह ते वार वार असीं पोचा मारी जा रहे हैं, उस जगह ते सेवा करी जा रहे हैं। इस तरह गुरु प्रसन्न एक जगह ते सफाई है, सेवा होई पई है। जिथे सेवा नहीं हुई उत्थे सेवा सानू करनी चाहिए है। ऐसे गुरु के स्थान ने कि जिथे जाके सानू सेवा करनी चाहिए, जिथे बहुत संगत घट जाती है। महाराज की अनक भांत कर सेवा करिए। अनक तो भाव अनेकां, भांत का अर्थ है तरीकिਆਂ ਦੇ नाल सेवा करनी की है। एक गुरु की सेवा, एक प्रभु परमात्मा की सेवा किवें करनी है। विच दुनिया सेव कमाई है, जिहड़े रब दे प्यारे ने ना उन्हां दी सेवा, उन्हां दी बांह फड़नी है। अज लोड़ है, जिवें सिंह साहब जी दस रहे सन कि अज हड़ां की मार हेठ बहुत सारे घर परिवार जिहड़े जिन्हां दे घर ढह गए ने, जिन्हां दे घर खाण पीण नूं नहीं है, जिन्हां दे घर बचे ने मुबारक है, जिन्हां दे रुड़ गए ने ना उन्हां दी सानू अज साथ देना चाहिए, बांह फड़नी चाहिए है।
ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਸਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਰਸਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਨੇ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਏ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਏ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੇਵਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸੰਭਲ ਭੰਨੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇ, ਰਿੱਝ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਖਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਐ, ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਨ ਧਨ ਆਗੈ ਧਰੀਐ। ਸੁਹਾਗਣ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰਹਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਲੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਏ। ਸਵਾਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਕੋਈ ਜਨ, ਜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਕੋਂ ਸੁਭ ਰਸਨਾ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ। ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਬੋਲਾਂ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਕੋਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲਿਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਚੱਲਿਆ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਗਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਾਗਣ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੇਗੀ, ਭਾਈ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,
तन दे नाल, मन दे नाल, धन दे नाल वो सेवा सफली है। नाल नाल सिमरन। कई ऐसे गुरमुख प्यारे रूहां ने कि जेड़े नाल नाल सेवा करते ने, नाल उन्हां दी रसना, नाल उन्हां दे कंन जेड़े ने वो गुरु दे नाल, गुरु शब्द दे नाल जुड़े हुए ने। मुख तो रसना सिमरन उन्हां दा चल रहा है, जां उन्हां दे कंन जेड़े गुरु शब्द दे नाल जुड़े हुए ने, सिमरन भी कर रहे ने, सेवा भी कर रहे ने। वो सेवा जिहड़ी है सफली है। सो सतगुर महाराज सच्चे पातशाह जी कहते नाल जियो प्राण धन आगे धरिए। जियो प्राण ये जिंद जिहड़ी है ते प्राण जिहड़े ने ये अपना धन सब कुछ उस दे अगे रख देना चाहिए है। जिहड़ा जीव प्रभु परमात्मा दे नाल जुड़िया होया है, भाव उन्होंने समर्पित हो जाना चाहिए है। ये नहीं वेखना चाहिए है फलाना है, ये मेरा, मेर तेर दी भावना जिहड़ी है ना, वितकरा जिहड़ा इनू छड्डना पएगा, त्यागना पएगा। ये फलाना, ये मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। गुरु साहब जी ने ते ये उपदेश सानू दृढ़ कराया है। एक पिता एक सके हम बारक, तू मेरा गुरहाई। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी, हर दर्शन देहो दिखाई। सुन मीता धूरी को बल जाई, यह मन तेरा भाई। अगे बचन है पाम मलोवा मल मल धोवा, ए मन तैं कू देसा। मैं तेरे पैर मलन नूं भी तैयार हाँ, मल मल के धोण नूं भी तैयार, भाव तेरी सेवा दे विच हाज़र हाँ। मैं तेनू समर्पित हो चुका, मल मल धोवा, ए मन तैं कू देसा। मन भी तेनू दे दिता है। सुन मीता हाँ तेरी शरणाई आया, प्रभ मिलो देहो उपदेसा। है मेरे मित्र मैं तेरी शरण आया है, मैं परमात्मा नू मिलना चाहता है, मैनू भी दस पा, मैनू भी परमात्मा वाहिगुरु दे नाल जोड़ दे। ते अगों जेड़ा जग्यासू, जेड़ा गुरमुख प्रभु परमात्मा दे नाल जुड़िया होया संगत विच आउंदा है, वो फिर अगों तरीका दसदा है। सुन मीता हों तेरी शरणाई आया, प्रभ मिलो देहो उपदेसा। वो की है मान ना कीजै शरण परिजै, करे सो भला मनाइए। एक तां तू अपने अंदर मान जिहड़ा ना मान छड्ड दे। सेवा करदियां भी साडे अंदर मान आ जाता, मैं दानी हाँ, मैं पुन्नी हाँ, मैं सेवा की, मैं इन्ना धन दिता। भाई तू कित्थों ले आया सी? ये सब कुछ गुरु साहब जी ने कहा कि उस दाते ने दत्ता है। जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा, तो विद नीकी खटानी। जी की एक ही पहमानी, अवर जतन कर रहे बहु तेरे, तिन तिल नहीं कीमत जानी। हुण ओ जग्यासू कहंदा भाई जे तू परमात्मा नू मिलना है ना तो मान ना कीजै, मान छड्ड दे, अहंकार छड्ड दे, शरण परिजै। ते हमेशा गुरमुखां दी संगत करया कर। ये नहीं कि एक दिन दो दिन चार दिन, लगातार संगत विच आउणा है। शरण परिजै करे सो भला मनाइए। हुण जो प्रभु परमात्मा करदा है ना उन्होंने भला करके सत करके मनना, चंगा करके मनना है। भावें तेरे वास्ते माड़ा हो रहा है, आपां ते यही समझदे हां। कोई साडे वास्ते कोई विघन आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, कदे असीं कहने जी परमात्मा ने माड़ा कर दिता। नहीं गुरमुखो, वो कदे भी माड़ा किसी का नहीं करता। कई बार साडे मन विच भी ख्याल आउंदा जी गुरु कोल गए, इन्ना चिर संगत की, सानू वो प्राप्ति नहीं हुई, साडी ते गुरु ने सुनी नहीं, सगों साडा होर बिगड़ गया। नहीं, ऐसा नहीं। सतगुर किसे दा, प्रभु किसे दा माड़ा नहीं करता। सतगुर सबना दा भला मनाएंदा, तिस दा बुरा क्यों होए। साडे विच कोई कमी होवेगी, इस करके वो जो कर रहा है ना वो चंगा ही कर रहा, कदे भी माड़ा नहीं करता, उहदे विच भी भला है। असीं करदे हो रहे हैं तो हुंदा हो रहा है, पर वो असीं समझदे हां कि ये साडे वास्ते माड़ा होया, कदी नहीं माड़ा करदा। वो साडे वास्ते जदों भी करदा है चंगा भी करदा। साडे कोल ते कुछ भी नहीं हो सकदा। असीं ते ये काम जिहड़ा है ना करन वाला, जदों भी करांगे ना ते गुरु दे चरणां विच अरदास करके, सिमरन करके, भगती करके, परमात्मा दे गुण करके, गा के कि मालिक जी आ काम मैं जो कर लगा ये तुसीं मेरे कोलों करवाउणा। मेरी कोई हिम्मत नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई पाया नहीं है मैं को कुछ कर सकां। पाणी दा बचन है, कीता करना सर्ब रजाई, किस कीचै जे कर सकिए।
ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੈ, ਜਿਉ ਹਰ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੀਐ। ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਮਨਾਈਐ, ਮਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੀਜੈ, ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਮਨਾਈਐ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀਜੈ, ਇਉ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਜੀਓ ਪਾਈਐ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਐ, ਜੀਓ ਪ੍ਰਾਨ ਧਨ ਆਗੈ ਧਰੀਐ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀਜੈ, ਜੀਓ ਜਿੰਦ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਧਨ, ਇਹ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਬ ਭਾਵੈ ਲੈ ਖਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ ਸ਼ਰਨ ਪਰੀਜੈ, ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਮਨਾਈਐ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀਜੈ, ਇਉ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਜੀਓ ਪਾਈਐ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਈ ਤੇ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੀ, ਜੀਓ ਪ੍ਰਾਨ ਧਨ ਆਗੈ ਧਰੀਐ। ਇਹ ਜੀ ਜਿੰਦ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਐ, ਜੀਓ ਪ੍ਰਾਣ ਧਨ ਆਗੈ ਧਰੀਐ। ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਕਰੋ ਤਜ ਅਭਵਾਨ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਸਦਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨਕ ਬਾਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਈ ਉਹ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੁਗਿਆਸੂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਨਕ ਬਾਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਕਰੋ ਤਜ ਅਭਮਾਨ। ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਛਕਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਤਜ ਅਭਮਾਨ। ਤਜ ਅਭਮਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਪੱਖਾ ਫੇਰਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ, ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਦੇ ਸਨ, 2-4 ਜਾਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਖਾ ਝੱਲਦੇ ਸਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਕਰੋ ਤਜ ਅਭਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਮੈਂ ਦੇ ਸਨੇਹਾ, ਤਿਸ ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਮੈਂ ਦੇ ਸਨੇਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਨੇਹਾ ਉਹਦੀ ਦੱਸ ਪਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਨਿਤ ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਸੇਵ ਕਰਾਵਾਂ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਪੱਖੇ ਦੀ ਝੱਲ ਮਾਰਾਂ, ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਜਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਢੋ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਵੇਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
सब तो सख्त जिहड़ी सेवा सी, जिहड़ी रात अद्धी रात उठ के गुरु अंगद देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी का अमृत वेले इशनान कराउणा, गागर जल दी चुकनी, गागर लैके खडूर साहिब की पावन धरती तो गोंदवाल साहिब ब्यासा दरिया ते जाके आप इशनान करके गुरु साहिब जी महाराज वास्ते जल लैके आउणा ते गुरु अंगद देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी का इशनान कराउणा। असीं एक सेवा कर लईए ना तो असीं कहिंदे जी बस हुण बस हो गई सेवा, बस बहुत सेवा कर लई है। धन गुरु अमरदास जी महाराज अमृत वेले की सेवा निभा के फिर लंगर दे विच सेवा करते सन, फिर बर्तनां की सेवा करते सन। ये नहीं कि सेवा ही करते सन, फिर गुरु जी के पावन बचन उपदेश जिहड़े गुरु की बाणी जिहड़ी सी ਉਹਦਾ भी विचार करते सन, फिर सतगुरु महाराज जी की सिੱਖਿਆ अनुसार चलते सन। हर समय हर वेले ही सेवा ते सिमरन दे विच लगे रहिंदे सन धन गुरु अमरदास जी महाराज सच्चे पातशाह जी। एड्डी वड्डी सेवा जिहड़ी है बिना नागा पाया, ये नहीं कि नागा पा दिता, भावें हनेरी है ते भावें झक्खड़ है ते भावें बरसात हो रही है, धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने अपने गुरु धन गुरु अंगद देव जी महाराज जी की सेवा इन्नी वड्डी ये सेवा की, जे गुरु जी फिर उसनूं इन्नी वड्डी बख्शिश की। गुरु जी धन गुरु अमरदास जी महाराज जी नूं भा गए, भाव प्यारे लगे। सेवा इहो जी होनी चाहिए है, बिना निष्काम सेवा, सेवा करत होए निहकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। उन्होंने परमात्मा वाहेगुरु की प्राप्ति हुंदी जिहड़ा निष्कामता दे नाल सेवा करदा है। सो सतगुर महाराज कहते पानी पखा करों तज अभिमान, अनक बार जाइए कुर्बान, नित पखा फेरी सेव कमावा, तिस आगे पानी ढोवा। ਉਹਦੇ ਲਿਆਣ ਕੇ मैं जल दहाण के रखा, जल छकावा, इशनान करावा। भाव की है कि ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਾਗਣ ने गुरमुख ने, गुरमुखां दी संगत दे विच मैं हाजिर रवां, तत्पर रवां। अज सेवा करन दी लोड़ है, विच दुनिया सेव कमाईए तां दरगाह बैसन पाईए। हुण ये नहीं वेखण दा वेला कि ये फलाना है, ये मेरा है। जे सेवा करनी है तो जिन्ने भी असी सेवा वध तो वध कर सकते हाँ, हुण लोड़ है। तो उहदे वास्ते दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दूर जाण की लोड़ नहीं है। सुक्की रस्त होवे माया होवे, ये सानू जरूर जिन्ने भी असी वध तो वध सेवा करिए, ये सेवा हुण सफली है, फल देण वाली है। अनक बार जाइए कुर्बान, साई सुहागण जो प्रभ भाई, तिसकै संग मिलों मेरी माई। ये रहाऊ वाला बंद है, वो सुहागण है, वो भागां वाली जीव इस्त्री है जो परमात्मा नूं भाग गई है। सा सुहागण वो सुहागण है जिहड़ी परमात्मा नूं भाग गई, जिहड़ी परमात्मा वाहेगुरु दे विच लिवलीन हो गई है। अगे पातशाह जी बचन करते ने, दासन दासी की पनहार, उनकी रेण बसै जी नाल। गुरु साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी समझाते ने कि भाई जेड़े दास ने ना, उन्हां दे भी अगे दास, उन्हां दे भी दास। पनहार तो भाव के मैं उन्हां दी सेवा पानी दे नाल, जल दे नाल करां। दासन दासी की पनहार, उनकी रेण बसै जी नाल। उन्हां सुहागणा दी चरण धूड़ मेरी जिंद दे नाल, जी दे नाल टिकी रहे, ते मैं उन्हां सुहागणा दी संगत हासिल करां, उन्हां दियां दासियां दी पानी ढोण वाली बना। भाव उन्हां दे विच विचर के मैं सेवा करां, जिहड़ी भी सेवा होवे उहदे वास्ते मैं हाजिर होवां। ये मेरी अरदास है, बेनती है कि मालिक जी वो प्रभु परमात्मा जिहड़ियां तैनूं भाग गईयां ने, उन्हां दी संगत विच जाके मैं भी परमात्मा तेरे गुण में गावा ते उन्हां दी सेवा भी करा। उनकी रेण बसै जी नाल, माथे भाग तां पावों संग, मिले स्वामी अपने रंग। माथे भाग दा भाव है मेरे मथे उत्ते पूर्वले कर्मां दा भाग जाग पए। भाव मेरे चंगे भाग जाग पैण तां मैं उन्हां सुहागणा दी संगत करां ते परमात्मा वाहेगुरु ओ खसम जेड़ा प्रभु है अपने प्रेम रंग विच आके मिल पैंदा है। लोड़ ये है
कि सानू उन्हां सुहागण जीव इस्त्रियां दी संगत करन दा तरीका ढंग जिहड़ा है वो किवें प्राप्त होवे। ते वो प्राप्त होंदा है गुरु दे बचनां राहीं। संगत विच आया ही असीं गुरु दी बाणी सुणदे आ, गुरु के बचन सरवण करांगे ते फिर संगत दे विच आके जदों बैठांगे ते अरदास बेनती करांगे, पुछांगे भाई तुसीं तुहानूं परमात्मा किवें मिलिया, मैनूं सानूं भी दसो, सानूं भी वो परमात्मा वाहिगुरू दी प्राप्ति होवे, सानूं तरीका दस दो, ढंग दस दो, तुसीं की करदे हो। हो जाए पुछां सुहाग सुहागण, तुसीं क्यों पिर पाए अड़ा प्रभ मेरा। हो जाए पुछां, मैं जाके पुछां उन्हां जीव इस्त्रियां भागां वालियां नूं, सुहागणां नूं, भाव गुरमुख गुरमुखां दी संगत विच जाके पुछां भी तुसीं किवें वो पति परमेश्वर जिहड़ा है मेरा प्रभु जिहड़ा है तुसीं किवें पाया, तुसीं क्यों पिर पाए अड़ा प्रभ मेरा। मैं ऊपर नदर करी प्रभ सच है, मैं छोड़िया मेरा तेरा। अगों सवाल का जवाब है, मैं ऊपर नदर करी प्रभ सच है, मेरे मालिक प्रभु परमात्मा ने पति ने मेरे ऊपर मेहर की है, मैं छोड़िया मेरा तेरा। ते भैणे मैं जिहड़ा अंदर मेर तेर दी भावना सी ना वो छड़ दित्ती है, त्याग दित्ती है। ते जिहड़ा अपना मन है तन है मेरिए भैणे मैं ये गुरु नूं समर्पित, प्रभु नूं समर्पित कर दिता है। ते मेरी जिहड़ी जोत है उस प्रभु परमात्मा दे विच लिवलीन हो गई है, उहदे विच समा गई है। वेखो जिउंदे जी प्रभु परमात्मा विच लिवलीन होण दा सतगुरु जी ने सानू उपदेश दृढ़ कराया है। ये सब मन तन जीओ पिंड सब उहदा मालिक दा है, ते मेरिए भैणे ये उहनूं समर्पित कर दे ते फिर ये जोत जिहड़ी प्रभु परमात्मा दे विच उस ज्योति दे विच समा जावेगी। इस तरीके दे नाल मेरिए भैणे उस प्रभु नूं तूं मिल पावेंगी, भा जाएगी, चंगी लगेगी। सो सतगुर महाराज ने मिलो स्वामी अपने रंग, वो अपने रंग दे विच परमात्मा आके फिर प्यार दे विच आके मिल पैंदा है। जाप ताप देवों सब नेमा, कर्म धर्म अर्पों सब होमा। जाप ताप का भाव है कि जिहड़े जप करने, जिहड़ियां समाधियां लाउणियां, ताप तो भाव मन दे हठ नाल वो कर्म करने जिहड़े परमात्मा नूं भाउंदे नहीं, चंगे नहीं लगदे। जाप ताप ये सब जिहड़े ने कर्म ने ना धर्म के नां ते मनुख जिहड़ा कर रहा है इन्हां नूं त्याग देना, छड़ देना है। क्योंकि लोग ना देवतियां आदिक नूं वस करन लई कई मंत्रां दे जाप करदे ने ते कई जंगलां विच जाके धूणियां तपांदे ने, तप करदे ने, होर भी कई तरह के अनेकां साधन करदे ने परमात्मा नूं मिलण वास्ते। धर्म के नां ते कर्म ऐसे करदे ने जो महाराज जी ने बाणी दे विच कहा ये सब फोकट ने, पखंड है। बाणी अंदर उपदेश है, कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जा गाती लूटै, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमख सिमरत जित छूटै, संतो सागर पार उतरियै जे को बचन कमावै संतन का, सो गुर प्रसादी तरियै। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते संतो सागर पार उतरिए, तरीका भी दस दिता। हे संत जनों इस संसार समुद्र तो पार उतरना है ते धर्म दे नां ते होर जेड़े कर्म करदे हो ना ये छड़ देवो, ये पखंड है। जे तुसीं संसार समुद्र तो पार होना चाहते हो, पार तो भाव की है, संसार समुद्र की है कि इहदे विच विकारां दीयां लहरां ने, इहदे विच माया दा प्रभाव है, इहदे अंदर ईर्खा द्वैस निंदिया चुगली है, मेर तेर दी भावना है। जे इन्हां सब चीज़ां नूं इन्हां तो खिहड़ा छडाउणा चाहुंदे हो ते संतो सागर पार उतरिए। करना की है, जे को वचन कमावे संतन का, वचन संतन का, गुरु की संगत विच आके रब दे प्यारियां दी संगत करके गुरु दे उपदेश नूं सरवण करके गुरु दे किरपा दे नाल सो गुर प्रसादी तरीए। गुरु की किरपा नाल इस संसार समुद्र तो पार हो सकते हैं। सतगुरु जी का होर बचन है,
पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निवल भुअंगम साधे। धर्म के नां ते ऐसे कर्म जेड़े लोग करते ने, महाराज कहते ने जाप ताप देवो सब नेमा, कर्म धर्म अर्पो सब होमा। ये सब नेम जेड़े सन ना, ये सब मैं त्याग दिते ने। हुण तेरा मैं परमात्मा वाहिगुरु नाम सिमरन वास्ते जिहड़ियां सुहागण ने, जीव इस्त्रियां गुरमुख ने, जिन्हां नूं परमात्मा वाहिगुरु तू प्यार करना, जिहड़ियां तैनूं भा गईयां ने, मैं उन्हां दी संगत विच आके जाप ताप धर्म दे नां ते जिहड़े कर्म सन इन्हां नूं छड्ड दिता। जिहड़े पातशाह जी कहंदे पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निवल भुअंगम साधे, पंच जना स्यों संग ना छुटकियो, अदक अहंग बुद्ध बाधे प्यारे, इन विद मिलन ना जाई। इन्हां तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਆ ਤੈਨੂੰ परमात्मा ਦਾ ਮਿਲਾਪ नहीं होना। मैं कीए कर्म अनेकां, इत्थे जदों गुरु सवारियो अर्थ करते हैं ना तो सुधा इउं जापदा है कि गुरु साहब जी कहते मैं कीए कर्म अनेकां, कि मैं इहो जिहे अनेकां कर्म कीते, नहीं ऐसा नहीं। गुरु साहब जी कह रहे ने कि इहो जिहे अनेकां कर्म करन वाले मैं वेखे ने, बहुत सारे अनेकां कर्म इहो जे करदे सन। हार परियो स्वामी कै द्वारै दीजै बुद्ध विवेका। गुरु साहब जी कहते असीं ते गुरु परमात्मा की शरण लैके ये अरदास करन दा उपदेश सानू दे रहे हैं, विवेक बुद्धि वास्ते भाई गुरु की शरण विच आओ। बहुत सारे ऐसे कर्म सन। मौन भयो करपाती रहियो, नगन फिरियो बन माही, तट तीर्थ सब धरती भ्रमियो, दुबदा छुटकै नाही, मन कामना तीर्थ जाए बसियो, सिर कर वत धराए, मन की मैल ना उतरै एह बिद, मन की मैल ना उतरै एह बिद, जे लख जतन कराए। लखां ही जतन मनुख करी जावे, इस तरीके दे नाल मन निर्मल नहीं होना। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हुण अगे कनक कामनी हैवर गैवर, बहु विद दान दातारा, अन्न वस्त्र भूम बहु अर्पे, नह मिली है हरद्वारा। अन्न वस्त्र भूम ये भी अर्पण कर दिते, फिर भी परमात्मा का दर नहीं मिलिया। कनक कामनी, कामनी इस्त्री नूं कहा है, कनक सोने नूं कहा है, कनक कामनी हैवर गैवर, हाथी घोड़े, बहु विद दान दातारा, बड़ा दान दिता, पर इस तरीके नाल भी मालिक की प्राप्ति नहीं हुई। हुण फिर अगे पता कि अखीर ते दस्सिया गुरु साहब जी ने, हर कीरत साध संगत है, सिर करमन कै कर्मा, कहो नानक तिस भयो प्राप्त, जिस पुरब लिखे का लहना। माथे भाग तां पावों संग, मिले स्वामी अपने रंग, जाप ताप देवों सब नेमा, कर्म धर्म अर्पों सब होमा। हुण सुखमनी साहब जी की पावन बाणी आपां पढ़दे हैं ना, तो सतगुरु धन गुरु अर्जन साहब जी महाराज जी का बचन, जाप ताप ज्ञान इशनान, खट शास्त्र सिमरत विख्यान, जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग वन मधे फिरिया। हुण सारा कुछ छड्ड के, घर परिवार छड्ड के जंगलों बेलियां विच चले गया। बड़े जाप ताप बड़ा कुछ किया, पर फिर भी मन जिहड़ा है वो शांत नहीं होया, मन की मैल उतरी नहीं, मन तो उस तरह ही भटक रहा। सो महाराज सच्चे पातशाह जी समझा रहे ने, लोग देवतियां आदਿਕ ਨੂੰ वस करने लई कई मंत्रां दे जाप करते ने, कई जंगलों में धूणियां तपाउंदे ने, होर कई तरह के अनेकां साधन करते ने, कई लोग तीर्थां ते इशनान आदਿਕ मिथे हुए धार्मिक कर्म करते ने, भाव जग होम, ये मैं सारे जाप सारे तप होर सारे साधन ये सब खत्म कर दिते। कदों कीते? सुहागणा की संगत दे वट्टे, गुरमुखां की संगत विच आके ये सब कुछ छड़ दिते, ये सब दे दिते ने, खत्म कर दिते ने। सारे मिथे हुए धार्मिक कर्म, सारे जग होम भेटा करन नूं तैयार भाव खत्म कर दिते ने। मालिक जी तेरे सुहागण जीव इस्त्रियां गुरमुखां प्यारियां दी मैनूं संगत मिल जावे। मेरी ये तांग है कि अहंकार छड्ड के मोह त्याग के, गर्भ मोह तज होवो रेन, उनके संग देखो प्रभ नैन। मैं अपना अहंकार छड्ड के मोह त्याग के मैं उन्हां सुहागणा दे चरनां दी धूड़ बन जावां। हे मां, उन्हां सुहागणा दी संगत विच रह के
मैं अपने प्रभु पति नूं इन्हां अखां दे नाल देख लवां। उनके संग देखो प्रभ नैन, अखां दे नाल उन्हां दी संगत विच जाके दोए दोए लोचन पेखां हऊँ हर बिन और ना देखा। मैं हरि तो बिना होर ना वेखां। ये मेरे अंदर दी भावना ये बन जावे। इस तरीके दे नाल सतगुरु जी ने सानू सारियां नू उपदेश दृढ़ कराया। भाव की है कि गुरमुखां दी संगत विच आउणा, गुरु दी संगत विच बैठना, ये अरदास बेनती करनी है। जिहड़े लगातार आ रहे ने मुबारक ने, जिहड़े किते किते आउंदे ने वो अरदास करके जाओ कि मालिक जी असीं भी लगातार इस संगत विच बहिए, रोजाना ही गुरु की संगत करिए। जे अज असीं गुरु साहिब जी महाराज अज आप जी दे चरनां विच धन गुरु तेग बहादुर साहब जी आप जी दे पावन स्थान गुरुद्वारा सीसगंज साहब आए हैं, अरदास करके जाओ मालिक जी इस तरह रोजाना ही सानू लै आओ। हाँ किते बहुत जरूरी काम पै गया है, इत्थे नहीं आ सके तो संगत रब दी परमात्मा दी एक है, किसी होर जगह ते लागे चले जाओ, अद्धा घंटा 15 मिनट संगत गुरु दी संगत विच जरूर जाना है। और जेड़े चाहते ने वो फिर भावें इत्थे ना किते आ सकन ते वो होर स्थान ते जरूर हाजरी भरते ने, वो परमात्मा वाहिगुरु दे गुण गाउंदे ने, उन्हां दे उत्ते मालिक दी कृपा है। गर्भ मोह तज होवो रेन, उनके संग देखो प्रभ नैन, निमख निमख एही आराधों, दिन सरैन ए सेवा साधों। निमख निमख तो भाव कि पल पल मेरे मन दी अंदर दी ए भावना है, आराधना है कि मैं अज मालिक दी सिफत सुन के आया, गुरु दरबार विच संगत कीती गुरमुखां दी, हुण मैं कल फिर जावांगा। मैं अज गुरु साहिब जी का यह उपदेश सरवण किया है, इनू हिरदे विच वसा के जाना। जो कुछ सुनिया है ना, एक कन्नों सुन के दूजे कन्न कढ़ नहीं देना। इसे नूं ही महाराज सच्चे पातशाह जी ने यह कहा है कि सो सतगुर प्यारा मेरा नाल है, जिथे किथे मैनों लै छड़ाई। गुरु का शब्द गुरु बाणी गुरु है। जदों इसनूं अपने हिरदे विच वसा के विचार के जो सुनिया है ते महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि यही गुरु है, यही प्यारा सतगुरु शब्द जिहड़ा हिरदे विच वस गया। हुण मैनूं जिथे किथे भी मैं गलत पासे जावांगा, मैनूं मैं रुक जावांगा, मैनूं गुरु साहिब जी आग्या नहीं देणगे। मैं माड़ी संगत विच नहीं जाना। मैं अज सुन के जो आया है सतगुरु जी का बेनती का शब्द अरदास कि गुरु साहिब जी ने कहा सी कि संगत करनी है गुरमुखां दी, सुहागणा दी, जिन्हां दा सिर दा साईं सिर उत्ते है, ते मैं उन्हां दी संगत नहीं जिहड़ी माड़ी संगत है, भैड़ी संगत है, रब नालों टुटी है, जिहड़ियां इस्त्रियां जीव इस्त्रियां दुहागणा ने, जिहड़ियां होर होर कर्म करदियां, मैं उन्हां दी संगत नहीं जाना। जदों गुरु दा शब्द हिरदे विच वसिया होवेगा फिर असीं रुकांगे, सोचांगे, गुरु दे वचन नूं विचारांगे, पढ़ांगे। ते महाराज कहंदे निमख निमख एही आराधों, दिन सरैन ए सेवा साधों। पल पल मैं ये मन दे विच आराधना करां, मैनूं उन्हां सुहागणां दी संगत मिले ते मैं दिन रात उन्हां दी सेवा दा साधन करदी रहां। भाव मैं सेवा विच जावां, संगत विच जावां ते मन करके बचना करके कर्मा करके गुरमुखां दी संगत विच हाजिर होवां, सेवा करां। सतगुर महाराज अगे बचन करते ने अखीर दे विच, भये कृपाल गोपाल गोविंद, साध संग नानक बख्शिंद। जेड़ी जीव इस्त्री साध संगत विच जा पहुँचदी, भाव गुरु की संगत विच आ गई, महाराज सच्चे पातशाह जी कहते बख्शणहार गोपाल गोविंद प्रभु जी उहदे उत्ते दयावान हो जाते ने, कृपा कर देंदे ने। क्योंकि संगत दे विच ही वो पति परमेश्वर का सानू मिलाप होना, विच संगत हर प्रभ वसै जीओ। सो संगत करनी बहुत जरूरी है। अरदास करिए, गुरु की संगत विच आइए। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, सत संगत का मिलाप हो जावे मेरे माधो जी, मेरे माया दे पति प्रभु जी। मैं संगत विच जावां, संगत दे विच जाके मैनूं पता लगा संसार दे विचों उहदा पार उतारा हो जाता है। क्योंकि इत्थे गुरु का मिलाप हुंदा है।
मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सुके कासट हरिया। मन के अंदर खेड़ा आ जाता, मन सुक्का कठोर, और ये मन जेड़ा हरिया भरिया हुंदा है जदों गुरु की संगत विच आवांगे। खोजत खोजत सुनी यह सोए, साध संगत बिन तरियो ना कोई। सतगुरु महाराज जी का वचन है कि परमात्मा नूं मिलना है, ते ऐसा परमात्मा दा मिलन दा जेड़ा थां है, जगह है, वो है सचखंड, गुरु की संगत। जिथे किथे आके ना इस संसार दे विच मनुख भटकदा फिरदा है, जे गुरु दा मिलाप हो जावे, गुरु की संगत विच आ जावे, ते महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ये थां ते जदों कोई आके बैठदा है गुरु दरबार विच, ये सुहावना थां है। महाराज कहंदे ने सा धरती भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, से जंत भए हरियावले, जिन्ने मेरा सतगुर देखिया जाए। धन धन पिता धन धन कुल, धन धन सो जननी जिन गुरु जणिया माए, धन धन गुरु जिन नाम अराध्या, आप तरिया जिन्ने डिठा तिना लए छड़ाए। हर सतगुर मेलो दया कर। हुण इत्थे बेनती है, हुण इत्थे रुक जाओ। हर सतगुर मेलो दया कर। ये हरि प्रभु जी जिवें अज सतगुर दे दरबार विच आए आ, मेरे ते दया कर मालिक जी, मैनू सतगुर दा मिलाप हो जावे। हर सतगुर मेलो दया कर, जन नानक धोवैं पाए। मैं तेरे चरना तो सदके बलहार जावां। ये थां ऐसा है विसरे नाही जित तू कबहूं, सो थान तेरा केहा, आठ पहर जित तो धियाई, निर्मल होवै देहा। मेरे राम हों सो थान भालन आया। बड़े थां लभदे आपां, थां थां ते आपां वेखदे आ कि लोग भटक रहे ने। थावां थावां ते जाके एक थां तो दूजी, दूजी तो थां, वो जान पाई आपां वड्डे भागां वाले हाँ, सानू गुरु चरनां विच थां मिली है। मेरे राम हों सो थान भालन आया। मेरे राम मैं वो थां लभण वास्ते आया, ते ना थां केड़ा लभा। खोजत खोजत भया साध संग, तिन शरणाई पाया। लभदियां लभदियां मैं गुरु की संगत विच पहुँच गया, ते मेरे मालिक जी इस संगत दे विचों तेरा मिलाप हो गया। सो सतगुर जी कृपा करन। वड्डे भागां वाले हाँ आपां सारे, गुरु की कृपा बख्शिश है। अरदास करके जाओ जेड़े किते किते आउंदे ने, रोजाना ही गुरु दरबार विच हाजरी भरीए सतगुरु जी के चरणों में। ये सारिਆਂ वास्ते अरदास बेनती है। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरबाणी की विचार करदिआं एक नहीं अनेकां ही भुल्लां हो गईयां हन। संगत अते गुरु बख्शण योग है जी, बख्श देणियां कोटान कोट शुक्र है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी का। गज के फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईयां। कहे नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। हर नाल रहो तू मन, मेरे दुख सब विसारना। सबना गल्लां समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। साचे साहिबा क्या नहीं करते रैं। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे।
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ।